Hello, children. Good morning. It's 10 o'clock, na? And what we do at this time? Of course, this is the science period. Children, we have completed the lesson reproduction in animal. And what I have promised that today I will start a new lesson to you. कुछ नया पढ़ेंगे आज हम लोग. Children, at very first, I am going to show some pictures. Huh? In this you see these pictures and tell me what is going on in this picture. And you can see a man, what he is doing. Push, and you know the meaning of pushing and pulling. Push करना मतलब किसी चीज को धक्का देना, pull करना मतलब अपनी तरफ को खींचना. हाँ, are these people pushing or pulling? You have to check the right one. This man is pushing or pulling? What he is doing? He is of course pushing. ये इसको push कर रहे हैं. Then इनका ये trolley bag आगे को जा रहा है ना. This is pushing. And what this aunt is doing? She is pushing or pulling? खींच रही है ना trolley bag को. She is pulling. Of course she is pulling. Then you will tick here pulling. And this picture you can see also the aunt is pulling. And what this greengrocer is doing? He is pushing or pulling? He is pushing his trolley, and then the wheels will move. And what is this pushing and pulling and pushing? This is called force. What it is called? It is called force. Pushing and pulling, it is called force. Of course, this is the name of lesson which we are going to read. Force, work and energy. Okay, and this is your lesson number 11, and I hope it is in your book page number 97. Okay, what you have learned? What is force? A push or pull on an object is called force. फोर्स लगाना, हम कहते हैं ना कि बहुत फोर्स लगाते हो, तो लगाने को कहते हैं क्या? पुशिंग एंड पुलिंग को कहते हैं. आप अपने चार को मूव करते हो अपने साइड, क्या करते हो? पुल करते हो. और जब दूर जाना होता है तो आप क्या करते हो? पुल करते हो और पुश करते हो. ऐसी करते हो ना चीजों को. इफ यू हैव टू ओपन द डोर तो क्या करते हो? यू पुल इट. और देन यू हैव टू क्लोज द डोर, देन व्हाट यू डू? यू पुश द डोर. Yes, of course, you are right. This is the pushing and pulling, and this is called force. Children, in this picture, you can see what do you do when you open or close a drawer? आप एक टेबल का जब आप ड्रॉअर खोलते हो, ये ऐसे जैसे बॉय कर रहा है, what he is doing? You pull it with your hand. अब पुल कर रहा है ना ये बच्चा, पुल कर रहा है, खींचना. पुल मतलब खींचना, इस डायरेक्शन में अपनी तरफ ले जा रहा है. देखो ये एरो बना है, दिस इज द एरो. एंड जब इस साइड में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पुलिंग. व्हेन यू क्लोज इट, you have taken your pencil, eraser, your things from here, and if you want to close it, then what you will do? You will push it. आप इस डायरेक्शन में, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओ. ये देखो, जब आप फोर्स ऐसे लगाओगे इस डायरेक्शन में, then you will push it. What he is doing? Pushing. And in this picture, what he is doing? Pulling. This is pulling and this is pushing. In other words, you apply force to move the drawer. And by pushing, the act of pushing or pulling is called force. ठीक है? Force क्या होता है? ये जो pushing pulling होता है, इसी को force कहते हैं. You cannot see or touch force, but you can see what it can do. आप फोर्स को नहीं देख सकते हो, बस फोर्स की वजह से जो चीजें हो रही हैं यू कैन सी. पुशिंग पुलिंग आपको दिख रहा है ना, तो यू कैन सी. ओके चिल्ड्रन, एंड व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स कैन डू मेनी थिंग्स विच यू कैन सी. व्हाट इट कैन डू? फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट. एक बॉल थी, हमने उसको ये देखो, इसने क्या किया? पुश किया बॉल को, तो ये क्या हो गया? मूव कर सकता है. किसी भी चीज को हमें मूव कराना है तो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट.
एंड फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट. देखो द बॉय इज कैचिंग द बॉल. तो ये क्या कर रहा है? ये चलती हुई चीजों को स्टॉप कर रहा है ना. दिस इज ड्यू टू फोर्स. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये शटल कॉक आता है, ये सीधा आता है, आप इसको इस रैकेट से इसका डायरेक्शन बदल देते हो ना. जस्ट लाइक क्रिकेट में क्या होता है, उसमें भी सेम चीज होता है. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक पॉटरमैन है, वो फोर्स लगा के क्या कर रहा है? शेप और साइज को चेंज कर दे रहा है. बाय दिस यू कैन सी व्हाट यू कैन सी डियर, that force can move an object, force can change the direction of an object. Okay, this is a square thing, huh? And I can change the shape. How? If I will, ये देखो भाई, ये हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया तो शेप चेंज हो गया. एंड और ज्यादा फोर्स लगा के यदि कोई पतली सी चीज होगी तो हम उसको बेंड भी कर सकते हैं. We can bend also some things. Let me show you. This is a wire. ये वायर सीधा है, ऐसे है, बट लेकिन हम इसको जब ये देखो चेंज द शेप, मैंने इसका शेप चेंज कर दिया. तो ये सीधा से जो मैंने ऐसे मोड़ा वो कैसे हुआ? ड्यू टू फोर्स. हमने फोर्स अप्लाई किया. और अब किसी मूव करती हुई चीज को आप, बैट्समैन क्या होता है, हिट करता है बैट से, तो वो क्या करता है? डायरेक्शन बॉल की चेंज करता है ना. तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. आपकी साइकिल चलाते हो, आप साइकिल चलाते हो और जब अपोजिट डायरेक्शन से आके कोई स्टॉप, तो वो आप स्टॉप भी कर लेते हो, उसको कर लेते हो ना, ब्रेक लगाते हो, स्टॉप कर लेते हो. तो आप एक तरीके से फोर्स लगाते हो. तो व्हाट कैन फोर्स डू? A force can move an object. A force can stop. जो बैट्समैन जब छक्का मारता है या बॉल को प्ले करता है, तो जो आउटसाइड पे खड़े होते हैं प्लेयर्स, वो क्या करते हैं? उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, कैच करने की कोशिश करते हैं. तो फोर्स लगाते हैं तभी तो. Now we have learned many things about the force. That force can move an object, force can stop an object, force can change the direction of an object, and force can change the shape also, we have seen. And children, do you know the types of forces? These forces are of different types also. Let us discuss. We will discuss one by one, huh? The very important force, gravitational force. Where we live, बेटा, हम कहाँ पे रहते हैं? We live on earth. तो अर्थ पे कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. एंड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन जिसको कहते हैं. कोई चीज मूव करती है तो वो मूव करती जाएगी अगर कोई उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको रोके ना. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. हम अर्थ में मूव करते हैं, चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर में स्टॉप कर दे हो जाते हैं. हमको नीचे से किस वजह से स्टॉप होती है? एक बॉल को आप फेंकते हो, थोड़ी देर में जाके वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. क्यों? क्योंकि अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं. टुडे वी विल रीड अबाउट दीज टू थिंग्स. ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. There are another type of forces also, magnetic force, electrostatic force. In the next class, we will read in detail about these two forces. Okay, let's read one by one. What is gravity? Gravity or gravitational force? Children, do one activity. एक काम करो आप क्या करोगे? Kick a ball up in the air. जब एक बॉल को एयर में आप ऊपर फेंकते हो, after going up of some time it will come down. कुछ समय के बाद वो चीज नीचे आ जाती है. क्यों नीचे आ जाती है बेटा? Why does it always fall down? हमेशा कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हो तो वो डाउन को क्यों आती है? This happens, ये क्यों होता है? Because of the pulling force of earth. That earth pulls every object towards the earth. ये हमारी धरती एक फोर्स अप्लाई कर रही है और वो फोर्स क्या कर रही है? अपनी और चीजों को खींच रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ खींच रहा है.
द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी चीज को, वो फोर्स जिससे अर्थ किसी चीज को अपनी ओर खींचती है, इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। आपने क्या सीखा कि जब हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं, हमने सपोज ये है, इसको मैंने ऊपर फेंका ऐसे, ये नीचे को आ गया। क्यों नीचे आ गया? मैंने ऊपर फेंका तो इसको हवा में तो नहीं गया, ये नीचे आ गया। क्यों नीचे क्यों आया? क्योंकि नीचे क्या चीज है? धरती है, अर्थ है, और अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आप एक ट्री से देखते हो, हमेशा फ्रूट पक जाता है, तो वो फ्रूट कहाँ गिरता है बेटा? नीचे को आता है। क्यों? क्योंकि धरती उसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। चिल्ड्रन, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता भी होगी, बहुत सारे बच्चों को, जब स्पेस क्राफ्ट में स्पेस में जाते हैं, स्पेस कहाँ है? अर्थ से बहुत ऊपर है ना, यूनिवर्स में है ना, तो वहां पे तो धरती पे तो हम है नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, तो यहाँ वहां पे पीपल क्या करते हैं? उसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं, वो हवा में चारों ओर घूमते रहते हैं। उनको बैठने के लिए अपने को पूरा सीट में बेल्ट बांध करके बैठना पड़ता है। वो मूव करते हैं, अगर वो टूथपेस्ट से पेस्ट निकाल के अपने ब्रश पे लगाना डालते हैं तो भी वो नहीं कर पाते। वो लेके अपनी कोई चीज क्यों खा नहीं पाते? क्यों? बिकॉज देयर इज नो फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। और पता आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक प्लैनेट पे होता है, सबका। अर्थ पे दूसरा होता है, वो हम लोग दूसरे लेसन में और डिटेल में सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे। दिस टाइम यू अंडरस्टैंड कि जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी चीज को अपनी ओर लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। ड्यू टू दिस ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, एनीथिंग्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। इसी वजह से कोई भी चीज जमीन पे गिरती है, ऑलवेज फॉल डाउन, ऊपर को नहीं जाती है। ऊपर जाने के लिए हमने स्पेशली अपोजिट डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाएंगे किसी चीज में, तब वो ऊपर जाएगी। ग्रेविटी होल्ड्स एवरीथिंग ऑन द अर्थ। और ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी किसको कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को ही ग्रेविटी कहते हैं। और होल्ड्स करती है किसको? एवरीथिंग ऑन द अर्थ की ओर लाती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस बॉय ने पुश किया, बॉल को हिट किया फोर्स लगा के, ये बॉल हवा में तो गई, बट आफ्टर सम टाइम इट फॉल्स, ये अपने आप नीचे को आ गई। क्यों? द ग्रेविटी ऑफ द, जो यहाँ अर्थ की ग्रेविटी थी, उसने इसको अपनी ओर पुल कर लिया, खींच लिया टुवर्ड्स द अर्थ, और यही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। यू ऑल हैव अंडरस्टूड? चिल्ड्रन, हियर इज वन एक्टिविटी। दिस टाइम ड्यू टू लॉकडाउन, अभी तो हमारा स्कूल ओपन नहीं है, तो मैं आपको नहीं करके बता पा रही हूँ, बट यू ऑल कैन फील दिस, यू कैन डू दिस। हाँ, टेक अ टेनिस बॉल। आप टेनिस बॉल की जगह कोई स्मॉल बॉल भी ले सकते हैं जो आपके घर में है। गिव इट a slight push to make roll on the smooth surface of a floor। आपके कमरे के अंदर जो रूम, वो हमें टाइल्स, फ्लोर या कोई भी होता है, वो स्मूथ होता है, उस पर आप हल्का सा पुश करिए। हाँ, रोल ऑन द स्मूथ सरफेस ऑन द फ्लोर। वॉच हाउ फार द बॉल ट्रेवल्स। आप देखोगे आपने थोड़ा सा धक्का दिया और बॉल बहुत दूर चली गई। नाउ एक दूसरी सिचुएशन लो। नाउ पुश द बॉल विथ ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। जितनी ताकत आपने इतनी लगाई थी इस फ्लोर पे, उतनी ही फोर्स से ऑन अ रफ सरफेस। अब बाहर मिट्टी वाले एरिया में, जो चिकनी जमीन नहीं है, घास पत्ते जहाँ पे है, वहां पर अब आप पुश करो उतना ही फोर्स लगा करके। यू विल नोटिस, आप क्या देखोगे? द बॉल ट्रेवल्स शॉर्टर डिस्टेंस, ये कम दूरी पे जाएगी रफ, यहाँ पे उतना ही इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाने पे ये डिस्टेंस कम कवर करेगी। लेकिन जो स्मूथ प्लेस होगा वहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर होगा। ठीक है? Why do you think the ball rolls a shorter distance on a grass? और यहाँ स्मूथ जगह पे क्यों? ये फ्रिक्शन की वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जो फोर्स आप लगाते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, आपके किए हुए काम को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स लगता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है।
हियर द फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम है, बहुत लेस होता है, वो रोक नहीं पाता है, स्मूथ प्लेस में फ्रिक्शनल फोर्स लेस है, तो ये बॉल बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। और ये रफ सरफेस है तो इसमें ये बॉल बहुत जल्दी ही रुक जाती है। दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, फ्रिक्शन, जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। यू ऑल विल डू what you will ये इसमें कहने का मतलब क्या है, whenever an object move on a surface, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब बॉल या कोई भी चीज सरफेस से मूव करता है, the surface apply a force to slow down or stop the movement of the object। उस बॉल को मूवमेंट को रोकने के लिए जिस सरफेस पे वो जमीन पे चल रहा था वो अपना फोर्स अप्लाई करता है। जो सरफेस अप्लाई करता है दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। इसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन कहते हैं। A rough surface causes more friction than smooth surface। इसी वजह से जब ज्यादा सा फ्रिक्शन लगता है तो चीज जल्दी स्टॉप हो जाती है, और स्मूथ सरफेस में जल्दी स्टॉप नहीं होती। आपने देखा जब कमरे में बहुत ज्यादा, जब इस रूम में आपने देखा था ये स्मूथ था यहाँ पे तो बॉल बहुत दूर गई, और जब यहाँ सरफेस रफ था तो बॉल थोड़ी दूर पे जाके रुक गई ना। A rough surface causes more friction than a smooth surface. That is why a ball travels a shorter distance on a grass surface than on a smooth surface. ठीक है चिल्ड्रन, आपके साथ भी होता होगा when in your classroom, जब आप पढ़ते हो तो आपका टेबल बहुत स्मूथ होता है, तो आपका जो पेन पेंसिल वो क्या होता है, जैसे ये एक स्मूथ सरफेस है, इस पे मैंने जैसे ही रखा तो आप देखोगे ये आगे को झट से चला जा रहा है। क्यों? बहुत जल्दी, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, और ये एकदम जल्दी से स्मूथ पे चला जा रहा है। लेकिन यही यहाँ पे यदि अप डाउन होता तो ये इसको स्टॉप कर लेता, एंड दैट इज रफ सरफेस में स्टॉप कर लेता है, एंड स्मूथ सरफेस में इट मूव्स, ये जल्दी मूव करता है। एंड फ्रिक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी। फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। दिस इज इन बुक, इन योर पेज नंबर 99 पे ये सब कुछ लिखा है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी। फ्रिक्शन स्लो डाउन द मोशन, जो मोशन मतलब जो उसका मूवमेंट है उसको स्लो करता है, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द ग्रिप नेसेसरी फॉर द मोशन। ग्रिप मतलब वो पकड़ में प्रदान मजबूती देता है जो कि मोशन को रोकने के लिए जरूरी है। फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प अस इन वॉकिंग। आप क्या किसी स्लोपी चीज पे आप वॉक कर सकते हो? नहीं, आप झट से उस पे स्लाइड कर जाओगे। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन ऑन द सरफेस वी आर वॉकिंग ऑन, वी वुड स्लिप और फॉल। अब जहाँ पे सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो लेस फ्रिक्शन होगा तो आप स्मूथ कर लोगे, स्लिप कर जाओगे या फॉल कर जाओगे। तो फ्रिक्शन वॉकिंग के लिए बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन हेल्प अस टू लाइट अ मैच स्टिक। जब एक कोई मैच स्टिक हम जलाते हैं तो जो मैच बॉक्स का रफ सरफेस है ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है मैच स्टिक को, और उसके आगे में वो इग्नाइट वाली, वो जलने वाली चीज लगी होती है, केमिकल, और जब हम ऐसे करते हैं तो लाइट आती है। फ्रिक्शन की वजह से ही होता है ये। और क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प अस टू होल्ड द थिंग। किसी भी चीज को हम क्यों पकड़ पाते हैं? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन की वजह से। देखो ये मैंने कैसे क्यों होल्ड कर दिया, फ्रिक्शन की, यहाँ पे ग्रिप होता है। वी कैन नॉट होल्ड स्लीपरी थिंग्स। और कोई चीज गीली होती है तो हम, बहुत स्लीपरी होती है तो हम उसको पकड़ पाते हैं? नहीं। सच एज वेट सोप्स, आप बाथरूम में जाते हो तो क्या गीले सोप को आप पकड़ पाते हो? आइस को आप जल्दी पकड़ पाते हो? नहीं। वाई? वेयर फ्रिक्शन इज वेरी लेस। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस बहुत स्मूथ है एंड इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन, किसी चीज को होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वी कैन मूव ऑन ऑब्जेक्ट। अगर कोई क्रिकेट बैट्समैन बॉल फेंकता है तो वो स्टॉप ही नहीं होगा यदि फ्रिक्शन नहीं है तो ना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फ्रिक्शन। Too much friction is bad. Friction is necessary, but too much of friction is not good. Some machines parts such as उनके जो दो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते तब वो मशीन चलती है। इट्स क्रिएट्स फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स, दे गेट वर्न आउट।
To save these parts from damage and reduce the friction, we oil them. जैसे साइकिल की जब चेन होती है, साइकिल की चेन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसमें ऑयलिंग करते हैं ना, हम ऑयलिंग करके उसके फ्रिक्शन को थोड़ा सा लेस करते हैं और तभी ये साइकिल मूव करती है. So now we have, and today we have understood about the force. Force क्या है? A push or pull is called force. जो पुशिंग और पुलिंग करते हैं उसको हम फोर्स कहते हैं. और फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स हमको दिखता तो नहीं है, बट ये बहुत कुछ कर सकता है. और वट एवर इट कैन डू, वी कैन फील दैट, वी कैन सी दैट. क्या क्या कर सकता है? इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टॉप a moving object, it can change the shape of an object. हमने देखा था ना ऑब्जेक्ट का शेप, अभी मैंने वायर का शेप चेंज कर दिया था फोर्स लगा करके. हाँ, और क्या चीज है? इट कैन पुश एंड पुल एन ऑब्जेक्ट. ये सब इंपॉर्टेंट चीज है. और जो फोर्स होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है. दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. ये सब जैसे जैसे बड़े क्लास में जाओगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे. टुडे आज मैंने दो फोर्सेस के बारे में आपको डिटेल में बताया. दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी. फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शन. हम चलते हैं, हम वॉक करते हैं, क्यों? फ्रिक्शंस की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम धरती पे खड़े हैं. अगर अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम अर्थ में फ्लाई करते होते, जैसा कि स्पेस में होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स वहां नहीं होता है ना. सो दीज फोर्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों ही फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. Children, read this chapter again and again, and whatever activity I have just now I've told you कि आप बॉल को फेंक करके दोनों जगह चेंज करके देखोगे, एक स्मूथ सरफेस में देखोगे, सेम उतना ही ताकत लगा के आप पुल करोगे बॉल को, बॉल ज्यादा दूर जाएगी. बट आप आउटसाइड में जहां उबड़ खाबड़ है सरफेस, तो वहां क्या होगा? बॉल थोड़ी दूर जाने पर स्टॉप हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा वो ज्यादा था, जिसको कि फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको कि फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, वो बॉल को स्टॉप कर दिया. समझ रहे हो? तो फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं. समझ गए ये बात? And in our next class, we will read the other thing in detail. This time, today, you will read the lesson again and again. We will meet in the next class. We will learn about different activities, the different types of force. We will read in detail. Okay, children? Meet you soon in the next class. Don't forget to read this lesson again and again. This is on page number 96, 97, 98 page number we have covered today. Okay? You all will read these 2.5 pages here. Okay? Bye bye children. Meet you soon in the next class.